ओके तो दोस्तों हम अभी चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी चैप्टर नंबर 7 को फिनिश किया। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम बात करेंगे वायरलेस एंड सोहो नेटवर्क विच इज स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस टाइप नेटवर्क्स। ठीक है, तो चले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो शायद 3 बजे तक फिनिश ना हो, बट हम इसको कंटिन्यूएंस करके जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखेगी वो कंबाइंड वर्जन होगा। ठीक है, so let's see. So over the last 2 chapters we have talked about a lot of foundational networking knowledge. We have discussed theoretical networking models, physical topologies, cables and connectors and connectivity devices. We also spent an entire chapter devoted to the most common protocol of all, TCP/IP. The one critical technology that we haven't covered yet is wireless technology. Because of the unique technology of wireless networking and its huge spike in popularity, अब ये सब मैं नहीं पढ़ता हूँ because this is irrelevant, but हम अब वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हमने काफ़ी लैन और हार्डवेयर डिवाइसेस की बात कर ली है। तो वायरलेस डिवाइस, what is wireless networking? So no area of networking has experienced a rapid and ascent as wireless networking over the last several years. वायरलेस नेटवर्किंग इतनी एडवांस हो गई है, पहले बहुत ही स्लो इक्विपमेंट वायर डिवाइसेस आते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली अपग्रेड हुए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई एंड प्रोटोकॉल्स भी उसके नए नए आते गए विच एक्सपेंडेड दी वाईफाई सिग्नल्स एंड दी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन. The most common term you will hear thrown around referring to wireless networking today is Wi-Fi. सब वायरलेस नेटवर्किंग को एज अ वाईफाई जानते हैं. While the term was originally coined as a marketing name for 802.11b, 802.11b is now used as a nickname referring to the family IEEE 802.11 standards. 802.11b is one of the frequencies or the wireless standards they have had in the past. Now, that family comprises the primary wireless networking technology in use today, but there are other wireless technologies out there too. But you might hear about Bluetooth, cellular, infrared or others. Each of these standards has its strengths and weaknesses and fill a competing role. The A+ exam covers only 802.11 though. 802.11 जो है वो cover होगा exam के अंदर, but cellular and Bluetooth may not be covered as much. I guess that's what they're saying. So we're going to skip this. We're going to come to 802.11 networking standards. In the United States, wireless LAN, also known as WLAN standards are created and managed by IEEE. The most commonly used wireless LAN standards used today are in 802.11 family. Eventually 802.11 will likely be made obsolete because it's been rated since 1997, तब से use हो रही है. But now as you can see, common operation frequencies are 802.11a, b, g, and NAC. AC represents 5 gigahertz network, and also represents, I believe, 5, and G and A 2.4 gigahertz network. So as mentioned in the introduction of this chapter, there are several wireless technologies. In concept, an 802.11 network is similar to Ethernet network, only it's wireless. That's the only difference. The network concept is the same. जैसे network Ethernet चलता है वैसे ही चलता है, but wirelessly चलता है. Now at the center of network Ethernet networks is a connectivity device like a hub or a switch or a router. ये जो network wireless network device है वो भी इवेंचुअली उसका जो बैकबोन है वो किसी न किसी राउटर या स्विच से कनेक्ट हुआ होता है. जो वायरलेस नेटवर्क हैं वो सिमिलर फैशन के तौर पे वो भी सेटअप होता है, बट इंस्टेड ऑफ ए वायर हम SSID से कनेक्ट होते हैं, विच इज कॉल्ड सर्विस सेट आइडेंटिफायर.
SSID जो है इट्स अ फैंसी टर्म ऑफ द वायरलेस नेटवर्क नेम। जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें मिलता है एयरपोर्ट फ्री वाईफाई, या हम स्टारबक्स में जाते हैं तो स्टारबक्स फ्री वाईफाई। जो भी हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो वायरलेस का जो नेम होता है दैट इज एन SSID। ठीक है, wireless access point may connect to other wireless access points, but eventually they connect back to a wired connection. जैसे मैंने ऊपर बोला, एक्सेस पॉइंट जो है वो वायरलेस सिग्नल्स थ्रो करते हैं। ये मैंने ये परसों डायग्राम में बना के बताया था। तो बट इन द एंड वो वायरलेस डिवाइसेस भी किसी ना किसी वायर से कनेक्टेड हुए हुए होते हैं। 802.11 networks use the carrier sense multiple access collision avoidance CSMA access method instead of Ethernet's carrier sense multiple access collision, which is CSMA-CD. Packet collisions are generally avoided, but when they do happen, the sender will need to wait a random period of time called the back-off time before transmitting again. जो 802.11 है वो CSMA-CA यूज करता है। CD जो है वो कनेक्शंस को चेक करता है, CA नहीं करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो पैकेट्स रिसीवर को नहीं मिलते हैं, फिर दे हैव टू वेट ऑन अ टाइम टू गेट दोज ट्रांसमिशंस बैक। पर ये पुराने प्रोटोकॉल की बात है, ये 802.11 की बात है। फिर जो ओरिजिनल 802.1 था, स्टैंडर्ड डिफाइंस वायरलेस ट्रांसमिटिंग अप टू 1 megabits per second to 2 megabits per second using 2.4 GHz frequency। 802.11 जो थी वो 1 meg से 2 meg की ट्रांसमिशन करता था। अब तो आता भी नहीं है ये। फिर दे केम अप विद 802.11a जिसकी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उन्होंने दी was 5 GHz and you would get about 54 megabits per second। तो स्पीड उस जमाने में काफी इंक्रीज हो गई 1999 के अंदर। until 2000 ये अच्छा खासा चला। फिर it came up with 802.11b, वो भी 99 में आया था, but device makers were much quicker to market that, making this the de facto wireless network standard for several years। ए के बाद बी भी उसी एरिया टाइम फ्रेम में आया था, बट ए को इतनी मार्केटिंग नहीं मिली जितनी बी को मिली। If you have overlapping wireless access point, you will need to have non-overlapping channels to avoid communication problems. We'll talk about this more in section installing and configuring SOHO networks. The two channels will not overlap if there are 4 channels between them. If you need to use 3 non-overlapping channels, your only choices are 1, 6 and 11, as I said. 1 जो black में point किए 6 and 6 and 11 are non-overlapping channels. तो अगर आप इस चैनल पे रखेंगे तो आपका internet will be a little bit better, especially if you're living in a townhouse or apartment or any area where दो तीन buildings मिलके जुड़ी हुई हैं, तो 2.4 GHz अच्छा नहीं चलता है इस एरिया में, बिकॉज वो नेबर्स के कनेक्टर ओवरलैपिंग बहुत होगी, नेबर्स के इंटरफेरेंस बहुत आएगी। तो उस केस में यू कैन गो एंड चेक कि आपके नेबर्स कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, और देन यू कैन चेंज योर फ्रीक्वेंसी टू 1, 6 और 11। उससे फिर क्या होगा कि आपकी बैंडविड्थ अच्छी आएगी। बट अगर आपके नेबर की जो वाईफाई की सेटिंग्स ऑटो के ऊपर है तो कोई हेल्प नहीं होगा आपको, बिकॉज वो नेबर का कभी 6 के ऊपर जाएगा, कभी 11 पे जाएगा, कभी 10 पे जाएगा, वो उसका चेंज होता रहेगा। सो दैट इज गोना कॉज यू प्रॉब्लम इन एंड देन। Continuing the evaluation in Wi-Fi 802.11n, that 2010 के अंदर वो टेक्नोलॉजी आई, एन चैनल, उसकी
bandwidth support up to 600 megabits per second थी, but in reality the throughput is about 300 to 400. ये 600 is theoretical, 300 they're saying reality, but even that is really hard to get practically. That's still pretty fast. It works in both 4 and 2.4 and 5 gigahertz range. The 802.1 achieves faster throughput in a couple of ways. Some of the enhancement include the use of 40 megahertz. So जो G तक था वो खाली 20 megahertz तक के channels थे. N के अंदर they added 22 as well as 40 megahertz. 40 megahertz के अंदर उनको frequency और ज़्यादा मिल गई, तो उसका मतलब ये हुआ कि 2.4 gigahertz के अंदर rush जो था, काफ़ी rush था ना channels का, frequencies का, वो अब कम हो गया क्योंकि अब ज़्यादा frequencies मिल गई, so a lot of people can hop onto any of these frequencies. So 802.11n combines two channels to double basically the throughput. Imagine being able to take two garden holes and combine. Okay, MIMO means using multiple antennas rather than a single antenna to communicate information. 802.11n devices can support up to 8 antennas or 4 streams because each antenna only sends or receives. Channel bonding allows the device to communicate simultaneously at 2.4 gigahertz and 5 gigahertz and bond the data stream, which increases throughput. MIMO is basically क्या है ना कि उसके अंदर जो एंटीनास इंटरनल काफ़ी एक्सेस पॉइंट में इंटरनल एंटीनास लगे होते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, या फिर एक्सटर्नल एंटीनास जो एंटीनास निकले होते हैं वो होते हैं. एक एंटीना either can receive या send. 4 एंटीना can do send and receive. So आपको 2 throughput मिल गया 4 का. 8 they can have up to 8 antennas. तो 8 antennas के अंदर आपको 4 stream at the same time मिल जाती है. और जो N जो है डिवाइस वो not N, G 802.11g 2.4 और 5 GHz के साथ साइमल्टेनियसली एक साथ ये दोनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर चल सकती है. वही एंटेना दोनों फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करता है जो कि पुराने में नहीं था. One big advantage of 802.11n is that it is backward compatible with A, B, and G. This is because 802.11 is capable of simultaneous servicing 802.11b, G, and clients operating in the 2.4 range, as well as 802.11a and clients operating in 5 GHz range. जैसे मैंने बोला कि 2.4 GHz और 5 GHz दोनों फ्रीक्वेंसी साथ में चलती है. डिपेंडिंग ऑन कौन सा अगर डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो, वो अगर 5 GHz कनेक्शन नहीं लेता है, जैसे थर्मोस्टेट, जो वाईफाई के थर्मोस्टेट है, दे डोंट वर्क ऑन 5 GHz. आप कोई भी ले लो, गूगल नेस्ट, इकोबी, कोई भी, दे ऑल वर्क ऑन 2.4 GHz. तो आप उसको 2.4 GHz पे काफ़ी इक्विपमेंट चला सकते हो. एट द सेम टाइम 5 GHz के ऊपर अपना सेल फोन भी चला सकते हो. दोनों साइमल्टेनियसली काम करेगा. In the 5 GHz spectrum, there are 25 non-overlapping 20 MHz communication channels, 24 of which can be used for Wi-Fi network. On the surface, this sounds much better than 3 non-overlapping channels available in 2.4 spectrum. To increase throughput, 802.11n and 11ac, we're going to talk about that in the next chapter, bond channels together. So when 20 MHz channels are bonded into 40 MHz channels, this reduces the number of non-overlapping channels to 12. जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, ज़्यादा उन्होंने चैनल्स डाल दिए, तो नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स ज़्यादा हो गए, 12 हो गए. पहले खाली 3 थे, अब 12 हो गए. जो चैनल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करते हैं. पहले 3 थे, अब 12 हो गए. To complicate matter further, whether commercial or military grade radar operate in the 5 GHz range as well, and Wi-Fi needs to avoid conflicting with them. इन्होंने खाली ये वाली फ्रीक्वेंसी अलाउड की है यूएस के अंदर, is because military radar, commercial, weather, ये जो FCC के जो planes और सब चलते हैं, उनमें काफ़ी अलग अलग किस्म की 5 GHz की दूसरी चैनल की रेंज इस्तेमाल होती है जो
होम पर्पस के लिए अलाउड नहीं है। तो होम पर्पस में खाली जो 40 मेगाहर्ट्ज चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो अलाउड की है। इसीलिए यूएस के अंदर 5G जो आया बहुत लेट आया। साउथ कोरिया के अंदर 4-5 साल पहले आ गया था और जापान में भी पहले। यहाँ पे बहुत लेट आया इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स they don't get permission to emit the signals. ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है। So to avoid conflicts, wireless routers use the technology named dynamic frequency selection (DFS), which will detect radar interference and dynamically adjust to a different frequency range to avoid the problem. If your installation is an area that does not receive interference from radar signals, you will have 12 non-overlapping 40 MHz channels. Otherwise, only 4 non-overlapping non-DFS 40 MHz channels remain available for bonding. So DFS is basically dynamic frequency selection. जैसे वो जो मैंने automatic option बताया था ना, works on this. वो automatic option works on this. वो जो भी कोई इंटरफेरेंस आएगा दिखेगा आपके राउटर को, इज गोना चेंज द फ्रीक्वेंसी टू द अदर वन। बट ये ऑल्सो बोल रहा है कि अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है आपके पास, तो आपको सारे के सारे 12 नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स अवेलेबल होंगे। कंजेस्टेड एरिया में कमर्शियल एरिया भी होगा, वहाँ पे सिर्फ 4 आपको नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स मिलेंगे। Technology is always marching forward, right? So they came up with, in 2014, they came up with AC that was approved as the new Wi-Fi standard. In many ways, it's more powerful version of 802.11n. AC is even more faster standard than G and N. It's the first commercial wireless standard that claims to offer the speed of gigabit Ethernet. AC के ऊपर they claim up to 1000 or more wirelessly. ठीक है, इसके अंदर भी MIMO का implementation है, meaning 2.4 and 5 GHz can work simultaneously. The theoretical maximum speed of 802.11 AC is about 6900 megabits per second. This is theoretical, as I said. This is not practical, but most devices can get up to 1300 megabits per second भी मिल जाते हैं आपको, which is pretty good to watch, like, you know, movies over the Wi-Fi. But again, अगर कोई interference नहीं है तो commonly 1300 तक आ जाता है, but commonly it's rated up to like 800 megabits per second. Okay. काफ़ी डिवाइसेस आते हैं जो क्लेम करते हैं कि दे कैन गो अप टू 2 gigabits per second. Asus के I have tried it. Asus are pretty good with emitting that. And Netgear का भी एक है, शुरू नाम याद नहीं आ रहा, but they उनकी भी स्पीड काफ़ी अच्छी है. Remember that Wi-Fi installations using the 5 GHz range need to steer clear of radar signals to avoid conflict. 5 GHz signals जो है, अगर उनको आप किसी रेडार टावर के पास कहीं नज़दीक में हो, स्पेशली एयरपोर्ट के, तो 5 GHz रेंज आपकी इतनी काम नहीं करेगी. बट 5 GHz की ज़्यादा रेंज वैसे भी होती नहीं है, सो अगर घर में आप रन कर रहे हो तो इट विल बी वेरी क्लोज एनीवे. ठीक है ना. (802.11 AC obtains its speed through channel bonding. And 802.11 can bond 20 MHz and 40 MHz altogether. दोनों frequencies को ये कर सकता है. Further, into AC जो है can bond even more into 80 MHz and or 160 MHz channel as well. Ignoring a DFS को for a moment, there are a maximum of 6 non-overlapping 80 MHz channel and 2 non-overlapping 160 MHz channels in the 5 GHz spectrum. तो 80 MHz के अंदर 6 non-overlapping है और 160 MHz के अंदर 2 non-overlapping channels हैं.
It takes maximum number of non-overlapping 80 MHz channel down to 2 and eliminates any possible 160 MHz channels. So DFS जो है वो क्या करता है जो non-overlapping channels हैं वो उसके ऊपर तवज्जो देता है mostly, and it tries to bounce you off of those channels as much as possible depending on the interference. जो कंपनीज जो हैं who wants to upgrade to a faster speed, they're trying to, when they try to utilize AC 802.11 AC, there are only 2 non-overlapping channels to use at 80 megahertz. So this makes it difficult. It's not impossible, but it makes it difficult to deploy anything other than relatively small office. तो small offices के अंदर because खाली 2 non-overlapping channels हैं तो काफ़ी जो बड़े बड़े जो लोकेशंस होती हैं ना जहाँ पे दे हैव लॉट ऑफ एक्सेस पॉइंट्स, वो फिर ये यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसके अंदर उनके पास नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स बहुत कम है. 40 मेगाहर्ट्ज के ऊपर दे हैड आई थिंक 8, सो दे कुड स्टिल यूज दैट. अदर ऑप्शन इज यूज 40 मेगाहर्ट्ज चैनल्स, है ना, बट then the performance boost of AC is small and not likely, so they're probably not gonna get 1 gig connection, but interference कम होगा. ये नॉर्थ अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी ये लोग शो कर रहे हैं. हम we can go up to the DFS channel है, we can go up to 112. Anything after that, this is not for home use, which is 160 to 165. These are really, we don't really use that, but DFS channel can go up to 112. ठीक है, at 40 megahertz, 80 megahertz, 160 megahertz. जैसे जैसे आप देख रहे हैं जैसे जैसे हर्ट्ज बढ़ रहे हैं मेगाहर्ट्ज, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है देखिए डिप कम हो रही है, मीनिंग कि 20 मेगाहर्ट्ज के अंदर देखिए कितनी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, बहुत सारी. 760 में ज़्यादा नहीं निकल रही है. 1570 तक जा रहा है और दूसरा 155330. कहने का मकसद ये है कि नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स 160 के ऊपर कम है कंपेयर टू 40 के अंदर. 40 के अंदर दे है 1 2 3 4 5 6 7 8. जो कोने दिख रहे हैं ना आपको, दैट्स द नॉन ओवरलैपिंग राइट हियर फॉर दैट. 80 के अंदर 1 2 3 4 ये नॉन ओवरलैपिंग. जो कोने दिख रहे हैं ना आपको वो 160 के अंदर ये जो कोने दिख रहे हैं दो नॉन ओवरलैपिंग है. The most important new feature is for 802.11 AC is beam forming, which can allow for a range increase by sending wireless signal in the specific direction of the client as opposed to broadcasting it omnidirectionally. Beam forming helps overcome the fact that the range of 5 GHz signal is inherently shorter than one of 2.4. Not all 802.11 AC routers support beamforming though, so you might have some range limitation depending on hardware. And even if you have the router does not support the technology, the maximum distance. Beamforming is something like आपको अगर वायरलेसली कुछ कनेक्ट करना हो विद वेयर यू वांट टू मेक श्योर कि सिग्नल्स आपके बिल्कुल भी ड्रॉप ना हो, तो एक स्पेशल डिवाइसेस आते हैं, एक्सेस पॉइंट कहते हैं उसको या क्या, वो आप एक्सटर्नली घर के बाहर लगा सकते हैं. जैसे दो बिल्डिंग्स हैं जो कि तकरीबन 1000 फीट एक जो जगह से एक दो से दूर है. तो मैं 1000 फीट अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम एडवांस फंक्शनैलिटी पे नहीं आए हैं इसलिए. सो लेट्स से 1000 फीट की दूरी पे है और आपको वायर रन नहीं करना है दो उसमें, तो यू कैन पुट अप ए डिवाइस which is the beam forming. वो बीम की तरह एक सिंगल ऐसा पॉइंट निकलता है, वो स्प्रेड नहीं होता है क्योंकि वाईफाई जो है पूरी स्प्रेड होती है स्पेक्ट्रम. ये बीम है ना एक सिंगल आपको एक पॉइंट फोकस करेगा, जैसे डिश एंटेना होता है ना वैसा ही होता है. वो डिश एंटेना की तरह वो एक बीम एक डिवाइस पे फॉर्म करेगा और दूसरी बिल्डिंग के अंदर ऐसा ही एक डिवाइस उसको कैच करेगा. तो वो उसके अंदर फोकस वो लूज नहीं करता है, इसलिए आपकी जो बैंडविड्थ है ना उस पर इतनी ज्यादा लूज नहीं होती है. तो ये चार्ट है थोड़ा सा 2.4 गीगाहर्ट्ज थ्रूपुट 2 मेगाबिट्स
ए और बी, जी एंड सी, ए सी। तो आप देख सकते हैं कि ए सी के अंदर काफ़ी बढ़ गई है उसकी स्पीड, एन के अंदर अप टू 600 Mbps आपको मिल जाती है, एंड रेंज भी बता रहे हैं आपको मैक्सिमम 250 मीटर रेंज if no interference. Also keep in mind that when discussing ranges, the further away from the wireless access point you are, the lower connection speed. जितना दूर आप जाएंगे उतनी स्पीड कम होती जाएगी। ये जो 1300 स्पीड है, it would probably be आप एक्सेस पॉइंट के बराबर में बैठे हुए हैं वायरलेसली, तो आपको ये मिल रही है। अगर आप 500 फीट या दूर चले जाएंगे तो 1300 आपकी शायद 800 या 500 में भी कन्वर्ट हो सकती है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितना इंटरफेरेंस आ रहा है। Modulation technology. We have mentioned 3 signal modulation technologies used in the 802.11 standard. First is FHSS, also known as frequency hopping spread spectrum. It accomplishes communication by hopping the transmission over a range of predefined frequencies. The changing or hopping is synchronized between both ends and appears to be a single transmission channel to both ends. Direct sequence spread spectrum, also known as DSSS, accomplishes communication by adding the data that is to be transmitted to a higher speed transmission. The higher speed transmission contains redundant information to ensure data accuracy. Each packet can then be reconstructed in the event of disruption. So DSS basically, FHSS क्या करता है? वो दोनों एंड के ऊपर जो सिग्नल्स फेंकता है वो सिंक्रोनाइज करता है इन अ सिंगल ट्रांसमिशन चैनल। वो सिंगल ट्रांसमिशन चैनल के ना दोनों तरफ से उसकी फ्रीक्वेंसीज को सिंक्रोनाइज करता है, मतलब मैच करता है। डायरेक्ट DSSS के अंदर बेसिकली वो रिडंडेंट डेटा को भी कैप्चर करता है, ताकि जो डेटा वो सेंड कर चुका, अगर वो डेटा नहीं गया तो यू सेंड इट अगेन, वो वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसको वापस भेजता है। OFDM, also known as orthogonal frequency division multiplexing, accomplishes communication by breaking the data into sub signals and transmitting them simultaneously. छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको तोड़ता है और फिर ट्रांसमिट करता है, तो वो क्विकली ट्रांसमिट हो जाता है। So if you think about a standard wired network and a device required on such network, you can easily determine what type of devices are available for 802.11 networks. Wireless network cards come in a variety of shapes. PCI, PCIe, USB and card bus. ये अलग अलग किस्म के कार्ड्स आते हैं जो हमने ऊपर के सेक्शन में पढ़े थे। PCIe स्लॉट्स में लगा सकते हैं, अब USB में लगा सकते हैं, कार्ड बस भी आते हैं। ये उसकी उन्होंने एग्जांपल दी है। In type of a hub called wireless access point. Okay, this is a wireless access point. Cisco का, Linksys का wireless access point है ये। इसका पीछे की पिक्चर नहीं दी है, बट ये wireless access point में यूजुअली एक इनपुट होता है ईथरनेट का और दूसरा अडेप्टर का होता है। You just plug in the Ethernet और वो जो पीछे से जो राउटर का इंटरनेट आएगा वो यहाँ से आके वायरलेस में कन्वर्ट होगा, जो मैंने कल आई थिंक डायग्राम बना के बताया था। Most wireless routers and WAP also have wired ports, जैसे मैंने बताया पीछे पोर्ट लगा हुआ होता है। Wireless encryption method. The growth of wireless systems has created several opportunities for attackers. These systems are relatively new. They use well-established communication mechanisms and they are easily intercepted. Wireless controllers such as 802.11 routers use SSID to allow communication with a specific access point. The SSID is basically the network name. Because by default, wireless router will broadcast their SSID. All someone with a wireless client needs to do is search for an available signal. If it's not secure, they can hop onto the network. जैसे मैंने पहले बताया, SSID जो है वो आपका नेटवर्क का नेम होता है। अगर वो नेटवर्क आपका सिक्योर नहीं है, मीनिंग कोई पासवर्ड से सिक्योर नहीं किया है, then anyone can hop onto it and then they can see कि उस नेटवर्क के थ्रू क्या ट्रैफिक जा रहा है, and they can see and read everything if everything is in clear text.
But using this type of SSID configuration does not prevent your wireless network from being compromised, as जैसे मैंने बोला. A more effective way of securing your network is to use one of the several encryption methods. जैसे हम पासवर्ड लगाते हैं, वो पासवर्ड के encryption methods होते हैं. उसके अंदर एक होता है call WAP, एक होता है WPA, दूसरा होता है WPA2. WAP को मैं कवर नहीं करूँगा because we are not supposed to use WAP. Quickly मैं बता देता हूँ. ये hexadecimal characters आपके encryption में होते हैं. WAP literally takes 5 minutes to hack. तो अब के ज़माने में I would highly recommend not to use WAP because इसकी जो encryption है, there is no encryption on this. It's a hexadecimal long character, and this can be hacked 5 to 10 minutes max. You may see the notation WAP.x, which refers to, okay, we will skip that because we're not using WAP. WPA, Wi-Fi protected access, is an improvement on WAP that was first available in 1999, but did not see widespread acceptance until 2003. WAP 1999, ये WPA 1999 में आ गया था, but until 2003, no one really picked up on that because I guess no one really cared about security back then. So now this standard was first to implement some of the features defined in IEEE 802.11i security specification. So most notably among them was TKIP, which is Temporal Key Integrity Protocol, whereas WAP uses 40 or 128 bit. TKIP uses 128 bit dynamic per packet key. It generates a new key for each packet sent. WPA also introduces message integrity check. Now WPA की जो TKIP की जो encryption है, ये भी outdated हो गई है. These can be hacked also. We want to get the AES encryption, वो आगे जाके आएगी. So I would also recommend not to use this, but for lecture purpose, आपको पता है कि WPA क्या है. Now WPA2, even though their names might make you assume the same, they are very similar. However, the huge improvement over WAP and WPA is the WPA2. As mentioned earlier, it implements all of the required element of the 802.11i security standard. Most notably, it uses counter mode CVC MAC protocol, which is a protocol based on the Advanced Encryption Standard AES. मैंने बताया AES security algorithm is more secure than the TKIP. CCMP was created to address the shortcomings of TKIP, so consecutively it's much stronger than TKIP. So since 2006, wireless devices have been required to support WPA2. WPA2 जो है AES and TKIP दोनों का option है उसके अंदर, but WPA only has TKIP option. So you're better off using WPA2. अब तो WPA3 भी आ गया है, but most phones are not able to handle that. So अभी भी WPA2 ही चल रहा है. Installing and configuring SOHO networks. Nearly every small office has a network, and it seems like most homes these days have one or more computers that need access to the internet. As a technician, you may be asked to set up or troubleshoot any number of these types of networks, often collectively referred to as a small office, home office, SOHO networks. That's what SOHO means. So this part of the chapter will give you the background you need to feel comfortable that you can get a job done. Now, choosing the types of connection. So you already know that for a computer to talk to each other, they need to be connected in some way. This can be with physical wires, या तो फिर wireless technology से connect कर सकते हो, कुछ भी. You need some type of connectivity. Now, you also need to think about the future. Remember that you have to, if you want to expand down the future, you need to design your network with having that mentality that down the road, if you want to expand your network, how can we expand it? So
On that base, you choose the connection type, whether it be the wired or wireless. So choosing an internet connection can be broadly broken into two categories, dial-up or broadband. It used to be that you had to wait and weigh the pros and cons and figure out, but today it's only broadband. But even more than broadband today is just FiOS. So your internet connection will give you online service through an ISP, which is internet service provider. The type of service you want will often determine who your ISP choices are. So for example, cable internet आपको ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन देगा, Verizon FiOS आपको फाइबर ऑप्टिक की कम्युनिकेशन देगा. डायल अप हम उसकी बात नहीं करेंगे because it's outdated. Yeah, DSL is also outdated. This is the DSL model. मैं quickly बता देता हूँ. Yeah, we used to have the DSL also. DSL जो था वो उससे थोड़ा डायल अप से फास्ट था. उसमें स्प्लिटर लगता था. और ये DSL की लाइन अलग से आती थी आपकी जो टेलीफोन की, पर आपका फोन उसमें फिर भी वो नहीं होता, हैंग नहीं होता, ठीक है ना. तो फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड, ये DSL का फिल्टर हम लगाते थे, मुझे याद है. इसके अंदर एक के अंदर फोन जाता था, दूसरे के अंदर मॉडेम जाता था, और ये कम्युनिकेट करता था ताकि आपका इंटरनेट भी चले और फोन भी चले एट द सेम टाइम. और ये DSL की स्पीड्स आपको देख रही है, अप टू 52 मेगाबिट्स पर सेकंड मिलती थी. एट दैट टाइम वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली. फिर लेट्स टॉक अबाउट ADSL की बात कर रहे हैं. We need to go to cable. Alright, the other half of the popular home broadband duet is the cable modem. These provide high speed. ओके, मैं क्विकली बताता हूँ. केबल मॉडेम ये हाई स्पीड है, DSL मॉडेम से ज़्यादा तेज़ है. ये डॉक्सिस का OS यूज़ करता है, विच इज़ कॉल्ड डेटा ओवर केबल सर्विस इंटरनेट स्पेसिफिकेशंस. डॉक्सिस, anyone who can get cable TV connection should be able to get this service, क्योंकि ये कॉपर के ऊपर चलती है. तो जहाँ पे भी कॉपर है वहाँ पे मोस्ट लाइकली आपको ये केबल की सर्विस मिलेगी. उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ती गई. 5 मैक्स से 30 मैक्स से 50 मैक्स टू 100 मैक्स और 400 MBs, और आज आई थिंक 1 gig की स्पीड भी आती है उस पर फॉर रेजिडेंशियल यूज़. अपलोड स्पीड में वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सके. 5 मेगाबिट्स पहले आती थी और अभी आई थिंक मैक्सिमम 20 मैक्स और समथिंग. तो राइट हियर 20 मैक्स ऑफ ट्रांसफ़र. सो अगेन केबल DSL से बेटर था. DSL फैक्स मॉडेम और डायल अप से, ना फैक्स मॉडेम, डायल अप से बेटर था. ठीक है. So to summarize here, the advantage of using cable, it's much faster than dial up, जैसे मैंने बोला. It's also faster than DSL. You are not required to have or use phone line. phone line की ज़रूरत नहीं है उसके लिए. It's generally very reliable depending on your ISP. It's reliable compared to DSL and dial-up. हम फाइबर की बात नहीं कर रहे हैं. केबल may not be available in your area. सब जगह पे शायद अवेलेबल नहीं होता है, काफ़ी जगह पे शायद dial-up अवेलेबल हो, बट आज की तारीख में केबल मोस्टली अवेलेबल है. FiOS हर जगह अवेलेबल नहीं है. सिक्योरिटी, इसके डिसएडवांटेजेस की जो बात कर रहे हैं. सिक्योरिटी could be an issue, especially you are on a LAN with all the neighbors in your cable segment. Thus if you are okay, ये भी अब नहीं होता है, सेगमेंटेशन हो गई है. मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर बेसिकली पहले क्या होता था कि आप बिल्डिंग में रहते थे तो नीचे कोई दुकान वाला आपको केबल इंटरनेट देता था. फिर वो केबल इंटरनेट जो है बेसिकली पीछे से एक ही इंटरनेट का कनेक्शन आता था और वो केबल सबको डिस्ट्रीब्यूट करता था. तो उसमें सिक्योरिटी की मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज आपके नेबर की आप कंप्यूटर के अंदर झांक सकते थे, आप अपनी नेबर के कंप्यूटर की फाइल्स देख सकते थे, सब कुछ देख सकते थे. तो ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब वो केबल तब था. अब केबल डिफरेंट हो गया है. केबल डज नॉट डू द जॉब दैट वे. इट्स मोर सिक्योर. ISDN, Integrated Services Digital Network, is a digital point-to-point network cable of maximum transmission speeds of about 2 megs. Although speeds of 128 kb are more common, ISDN uses the same two-pair UTP wires as POTS.
When they say ports, it means lines, okay? It's a common word. But it can transmit data at much higher speed. That's where the similarity ends. What makes ISDN different from a regular port line is how it uses the copper wiring. Instead of carrying an analog voice signal, it carries digital signal. While not nearly as fast as other broadband services, it still is considered a broadband type of access. ISDN भी इतना यूज नहीं होता है actually. A computer connects to an ISDN via a line and ISDN terminal adapter. Like DSL and cable modem, an ISDN terminal adapter is not an actual modem because it does not convert a digital signal to an analog signal. इसका सिग्नल पीछे से जो आता है वो डिजिटल ही होता है, तो इसको कन्वर्टर की जरूरत नहीं है, वो डिजिटल में आता है और डिजिटल में ही डाल देता है. Computers also need a network terminator to connect to the ISDN TA, but most TAs have them built in. If you have multiple users on the network who need internet access through the ISDN line, you need an ISDN router. अब कोई भी बिजनेस ISDN router या ISDN यूज नहीं करता है. You might get T1 or MPLS line at a higher enterprise level, but ISDN no one uses it anymore, so we will going to skip it. Fiber optic आ गया ना अपना. So fiber optic cable is pretty impressive, as we know. हमने पहले से पढ़ लिया था ऊपर की fiber optic कैसे बनती है, कैसे उन्होंने बनाई है. अभी एक an example of one such option is Fios offered by Verizon. It offers fiber to home, which means that the cables are 100% fiber up to your home box. It doesn't mean that box में से आपके कंप्यूटर में जो वायर जा रहा है वो भी फाइबर है, वो फाइबर नहीं है, वो कॉपर है. ठीक है. So the fastest speed offered for home users were 75 and now is up to 1 gig and above, and the upload and download speed were same because उसमें कोई latency नहीं थी, उसका throughput की कोई issue नहीं थे, तो उनकी upload speed भी same as download speed ही हो गई. तो HD movies आपको download करनी हो and stuff, it was very fast. Other companies may offer service called fiber to the node, FTTN, sometimes called fiber to the curb. This runs fiber to the phone or cable company's utility box near the street and then runs copper from there to your house. Maximum speeds for this type of service is around 25 megs. ये है ना, ये FTTN है और FTTH. H मतलब home, N मतलब नोड मतलब पोल के ऊपर है ना कॉमकास्ट के वो नोड लगे हुए होते हैं. कभी गौर करिएगा, एक है ना वाइट कलर का बॉक्स लगा होगा, दैट्स अ नोड. ठीक है ना. तो ये FTTN फाइबर टू द नोड, वो पीछे से कंपनी से फाइबर ही आता होगा और वो फाइबर पूरे आपके घर तक नहीं आएगा, वो उस नोड के अंदर जाएगा, फिर नोड से कॉपर का वायर आएगा, तो उससे स्पीड काफी रिड्यूस हो जाती है. फाइबर के डाउन साइड्स क्या है? ज़्यादा डाउन साइड्स नहीं है, उसकी बस अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिलती है, और उसकी प्राइसेस आर वेरी हाई. बट मेरे एरिया में प्राइसेस आर वेरी गुड क्योंकि हम लोग फाइबर के हेडक्वार्टर्स के पास हमारा है, तो हमें कभी कोई स्टोर्म कुछ भी आए फाइबर बंद ही नहीं होता है, तो वेरी गुड है वहाँ पे. अच्छा, सैटेलाइट. One type of broadband internet connection that does not get much fanfare is satellite internet. Satellite internet is not much like any other type of broadband connection. Instead of a cable connection, it uses a satellite dish. So basically मैं quickly बता देता हूँ ये क्या है. Satellite जो है, ये जो ऑर्बिट करते हैं अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर, जो वहाँ पे इनके इंटरनेट सैटेलाइट भी ऑर्बिट करते हैं. तो दो किस्म के हैं सैटेलाइट, जो इंटरनेट ऑर्बिट करते हैं एक वो, और वो जो सेलफोन टावर्स लगे होते हैं ना, उसको भी सैटेलाइट कहते हैं. अच्छा. उसको जैसे किसी के घर में, जब आप रूरल एरिया में चले जाएं, गांव गोठ में अगर आप चले जाएं, तो वहां पे दो किस्म के सैटेलाइट इंटरनेट उनको मिल सकते हैं. एक सैटेलाइट इंटरनेट कि वहां पे अगर सेलफोन का टावर हो, उसके ऊपर सैटेलाइट का डिश लगा हुआ हो, तो दे कैन बीम दैट इंटरनेट. ठीक है. पर अगर वो विलेज में है तो मोस्ट लाइकली उनका टावर वहाँ पे नहीं होगा. तो फिर सेकंड आता है जो अर्थ के जो सराउंडिंग में घूमता है सैटेलाइट, जो ये
इलॉन मस्क के जो सैटेलाइट घूम रहे हैं स्टारलिंक, वो सैटेलाइट यही है। वो स्टारलिंक बेसिकली क्या करता है कि रेज फेंकता है जमीन के अंदर, और वो ये बीम फॉर्मिंग रेज होती है, ये स्पेशली उसको ही टारगेट करती है। आपके पास आपके घर पे या बिजनेस के ऊपर एक छोटा सा डिश लगेगा, वो उस पर कैच करेगा और ये सैटेलाइट का कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन स्पीड इतनी तेज होती नहीं है, बट इट्स रीजनेबल। जहाँ पे आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन जस्ट यूज दैट। ठीक है ना? That's costly to $100. Very costly. And at least $100 per month. Sorry. 100 is probably more than that. They're talking about यहाँ पे another drawback to satellite technology is the delay, also called propagation delay, the latency. जब मैं बात करता ना, तो क्योंकि वो ट्रैफिक जमीन में आता है, फिर बाहर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, ऊपर नीचे, उसमें लेटेंसी देखिए कितनी, 250 मिलीसेकंड to 350 milliseconds. This is very big. इतना लेटेंसी नहीं होना चाहिए, really slows down things. अगर आपको लेटेंसी याद नहीं है तो आप देख लें लेटेंसी क्या है। लेटेंसी से मुराद, मेरे से टाइप हो जाए, ये है। ये लेटेंसी भी मुझे तो एक्चुअली देखने में अच्छी नहीं लग रही है। 70 मिलीसेकंड, 71, 70, 71, 73। ये मिलीसेकंड इज एक्चुअली वेरी हाई टू। यूजुअली मैं फाइबर के इंटरनेट से जब ये करता हूँ, आई गेट 3 मिलीसेकंड, वो अच्छा है। अभी मैं नियर बाय कहीं पे करूँ, लेट्स सी, रॉयल सिक्योरिटी पे करते हैं, कितना आता है देखो, इसका अच्छा आ रहा है 6 ms, है ना? क्योंकि ये डायरेक्टली लॉयल टेक सिक्योरिटी के सर्वर पे नहीं जा रहा है, इस क्लाउड फेयर पे जा रहा है, और क्लाउड फेयर के नज़दीक में कहीं सर्वर होगा, इसलिए वो कम मिलीसेकंड में छोड़ रहा है। पर गूगल का भी जाना चाहिए। गूगल का मे बी वन ऑफ द नोड इज डाउन, आई डोंट नो, शायद नज़दीक का नोड उसका डाउन होगा, हो सकता है। तो खैर, तो सैटेलाइट के अंदर ये इशू है। With standard web and email traffic, this delay, while slightly annoying, is acceptable. However, with VoIP, it is not. जो VoIP है, which is voice over IP, जो फोन सिस्टम होता है, उसके अंदर अगर इतना डिले आता है तो आपको किसी उसकी दूसरे बंदे की बात समझ नहीं आएगी, कट के आएगी या आएगी ही नहीं, लूज हो जाएगी आवाज। तो जब भी हम क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS या आगे चल के आएगा, राउटर के अंदर हम सेट करते हैं, तो हम VoIP को सबसे ऊपर रखते हैं। भले इंटरनेट सर्फिंग के लिए इंटरनेट की स्पीड हम कम कर लें, पर वॉइस ऑलवेज कम्स फर्स्ट, बिकॉज वो आप कांस्टेंट इमीडिएट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और इमीडिएट कम्युनिकेशन के लिए वो रिस्पांस उसी वक्त आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप यहाँ पे हेलो बोलें और वहां से हेलो 3 सेकंड के बाद आता है, देन इट्स नॉट वर्थ इट, यू नो। और यही जो डिले आप है, वो इंटरनेशनल कॉल्स करेंगे तो कभी कभी आता है। When installing a satellite system, you need to ensure that the satellite dish on the ground is pointed at the precisely the right spot in the sky. This can be tricky. जैसे मैंने अभी बताया, सैटेलाइट कैसे सिग्नल भेजता है, आपका एक डिश लगा होता है, प्रिसाइजली उसको पॉइंट करना चाहिए जो हवा में सैटेलाइट है। वो आपको कैसे पता चलता है कि भाई वो बराबर पॉइंट कर रहा है? वो जैसे जैसे आप मूव करेंगे ना, तो जो भी टेक्नीशियन आके उसको सेट करेगा, वो उसको एक मशीन से कनेक्ट करेगा, वो मशीन उसको एक नंबर्स देगा, बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ऑफ द सैटेलाइट डिश, और उसके ऊपर लाके उसको सेट करके लॉक कर देगा। फिर कभी कभी क्या होता है कि सैटेलाइट यहाँ से मूव हो गया, तो फिर आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। डिश में इसी तरह, डिश में रेगुलर डिश में वैसे ही तो नहीं, हम आगे था मेरे रेगुलर डिश के अंदर वो कभी कभी सोनी के चैनल आना बंद हो जाते थे, तो फिर ऊपर जाके डिश को हम हिलाते थे तो फिर चैनल आते थे। लाइन ऑफ साइट इज रिक्वायर्ड, देखा क्या, एकदम बीच में कुछ ज्यादा कुछ आना नहीं चाहिए। लेटेंसी इज अ प्रॉब्लम, दैट्स दीज आर द ड्रॉबैक्स। सही है। सेल्यूलर, the cell phone wants a clunky brick. Okay, let's just go. मैं डायरेक्टली सेल फोन पर आ जाता हूँ। वो थोड़ा बात कर रहे हैं कि 80 साल पहले आया था और ये सब। So we'll just go to the technology. There have been 2 major cell standards used around the world.
the global system for mobile communication, which is called GSM, and that's one of the most popular one, broadcasting over 1.5 million users in 210 countries. The second one is CDMA, Code Division Multiple Access. Verizon uses that. Sprint भी पहले ये use करता था, which was developed by Qualcomm and is available only in the United States. Both are considered 3G or third generation mobile technology and each has its advantages. GSM जो है वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और काफी चला है GSM और अभी भी चल रहा है. When CDMA was launched, it was much faster than GSM. GSM eventually caught up though, and the two now have relatively similar data rates. The biggest issue is that GSM and CDMA are not compatible with each other. Whatever technology you get is based on the provider you sign up with. तो पहले देखे जैसे मैंने बताया Sprint और Verizon CDMA यूज करते थे, but प्रॉब्लम में CDMA ये थी कि वो कैरियर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी थी. आप ऐसे नहीं कि Verizon का CDMA का फोन लेके Sprint के पास जाओ और वो यहाँ यूज नहीं कर सकते थे. GSM जो ऐसी टेक्नोलॉजी है, and before वो स्लो थी, अब they have increased the speed, पर वो आप सिम कार्ड चेंज करो and then it will log on to the GSM network, जो भी, as long as your phone is unlocked. So if you have CDMA on, जैसे मैंने अभी बताया, so now we have 4G technology available, which is the new global standard. The biggest enhancement in 4G LTE, long-term evolution over 3G speed, where 3G technology you were limited to 500 kb. With 4G you can get up to 10 to 20 megs download and 3 to 10 upload. 4G के अंदर basically आपको 10 to 20 down and 3 to 10 up speed मिल जाती है. ये खाली 4G में, ठीक है. Theoretical तो देखें वो कितनी बता रहे हैं, 300 से down to 75 up, जो कि practical के अंदर खाली 20 मिलती थी आपको maximum. ठीक है, कितना बड़ा difference है. The range of 4G LTE depends on the tower and obstruction in the way. जितने दूर उतनी कम स्पीड आती. 4G I'm gonna skip. यहाँ पे उन्होंने 5G की बात नहीं की है, बट 5G जो है can give you up to, यहाँ पे ये देखना theoretical कितना दे रहा था, theoretical दे रहा था 300. 5G can give you I think about 1000 or more, पर 5G की डिस्टेंस बहुत कम है. 5G जो सेल फोन टावर से जो आते हैं सिग्नल्स, उस वाले नेटवर्क की, मैं घर के 5G की बात नहीं कर रहा हूँ. सेल्यूलर 5G, सेल्यूलर 5G की रेंज कम है, हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, उनको ज्यादा नोड्स लगाने पड़ते हैं उसके लिए. ओके, फिर है थेथरिंग. थेथरिंग क्या है? Tethering means connecting two things together. दो चीजों को एक साथ कनेक्ट करना. That's tethering. In computing, it means hooking up your laptop to a cell phone and using the cell phone connection and data plan to get the internet. पहले क्या होता था, हम tethering करते थे कि tethering के plans आते थे. सेल फोन के ऊपर इंटरनेट होता था, पर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होता था. जब हम बाहर कहीं जाते थे तो सेल फोन से हम USB का वायर कनेक्ट करके कंप्यूटर में लगा देते और कंप्यूटर में भी इंटरनेट चलना शुरू हो जाता था. दैट इज कॉल्ड tethering. पर अब इनके पास आ गया है हॉटस्पॉट्स, मोबाइल हॉटस्पॉट्स एंड पर्सनल हॉटस्पॉट्स. मोबाइल हॉटस्पॉट्स आर आल्सो कॉल्ड माईफाई. ये है माईफाई डिवाइस आपकी छोटी सी, वेराइजन की है, अलग अलग कंपनी की आती है. इसके अंदर आप डालते हो सिम कार्ड, ठीक है, और इसके अंदर आप डालते हो सिम कार्ड जो भी आपकी कंपनी हो, वेराइजन या जो भी. तो लेट्स से आपने उनसे सिम कार्ड बाय की $30 पर मंथ और जो भी, उसमें आपको मिलता है 20 GB ऑफ डेटा. तो ये मोबाइल हॉटस्पॉट क्रिएट्स वाईफाई एक्सेस पॉइंट. तो आप इस डिवाइस को जब ऑन करेंगे ना, तो इसके अंदर से वाईफाई के सिग्नल्स इमिट होंगे और वो आपको SSID देगा. SSID कुछ भी होगी, वेराइजन माईफाई समथिंग. फिर आप अपने लैपटॉप को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं इससे. इसको आप पूरे US में कहीं भी लेके चले जाएं, चलेगा. जहाँ पे भी आपके सिग्नल आएंगे तो चलेगा. गाड़ी में बैठ के आप YouTube देख सकते हैं वायरलेसली. ये सब उस डेटा पे होता है. ये वाईफाई माई हॉटस्पॉट है. अब हम फोन से भी पर्सनल हॉटस्पॉट अब तो यूज कर सकते हैं. अपने फोन के नेटवर्क को
टेथरिंग अब कोई नहीं करता है, अब उसको हम पर्सनल हॉटस्पॉट बना देते हैं, तो वो भी ऐसे ही माईफाई बन जाता है, मोबाइल हॉटस्पॉट, बट उसकी स्पीड कम होती है। तो मैं बच्चों को देता हूँ ना ड्राइंग में, तो उनका यूट्यूब रुकता है। हाँ कैसे हो जाता है, सही ना। तो इन्होंने अलग अलग स्पीड बताई है यहाँ पे। केबल, हम केबल देखते हैं, केबल इज वन ऑफ द स्टिल द कंपेटिटर्स। 50 मैग्स 1 गिग तक इन्होंने देना शुरू कर दिया है। फाइबर इज ऑल्सो 1 गिग एंड हायर। सेल्यूलर इज अप टू 20 मैग्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, बट नाउ इट हैज गॉन अप ऑन 5G। सैटेलाइट नॉट सो मच, मे बी 20 मैग्स एट दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ चूजिंग द इंटरनल नेटवर्क कनेक्शन। इंटरनल नेटवर्क मतलब के इंट्रानेट. So wired connections from the backbone of nearly every network in existence. Even as wireless becomes more popular, the importance of wired connections still remains strong. In general, wired networks are faster and more secure than their wireless counterparts. So, जैसे मैंने बताया कि वायरलेस जो है ऑब्वियसली काफ़ी मशहूर हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो, वायरलेस से ज़्यादा वायर्ड जो है विल रिमेन मोर स्टेबल, मोर फास्टर एंड मोर यूटिलाइज्ड इन बिग कंपनीज। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस किस्म का वायर यूज़ करना है। STP, UTP, फाइबर ऑप्टिक, उस पर डिटरमिन करेगा कि अभी स्पीड क्या होगी। बट वायर्ड कनेक्शन जो है वो वायरलेस कनेक्शन से फिर भी तेज़ है। हमने ये ऊपर पढ़ा था, हम यहाँ ये वाला जो है 10, ये यहाँ से हम कवर नहीं कर रहे हैं। वी डू कवर फ्रॉम 1000 बेस T से लेके अप टू 10G बेस ER सिंगल मोड फाइबर। तो Cat 5e, you know it's very common. Cat 6a can give you up to 10 gigs of speed. इसमें से आपको सजा करने का कि इंटरनली आपको एक्सपेंड करना हो डाउन द रोड फ्यूचर में, तो कौन सी केबल इज द बेस्ट केबल फॉर यू टू यूज। सबसे पहले आपको ये पहले दिमाग में रखने का कि भाई अभी मैं अगर यूज कर रहा हूं, भले ना अभी मेरी जो नीड है 1 GB की है, पर अगर आगे जाके मुझे 10 GB की नीड पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। तो बेटर यही होगा कि 5E की केबल, अब अगर कोई भी नई केबल रन कर रहे हो तो 5E की केबल रन ना करें। अगर स्पेशली फॉर बिजनेसेस, होम के अंदर तो चलो चल जाएगा, 4-5 साल और चल जाएगा मे बी, बट बिजनेसेस के अंदर इट्स बेटर कि आप Cat 6 रन करें या Cat 6a, ताकि आप अपने इन्वायरमेंट को फ्यूचर प्रूफ कर दें। भले आपको एट द टाइम ऑफ द इंस्टॉलेशन आपको 1 GB की स्पीड मिलेगी, बट आपने फ्यूचर प्रूफ कर दिया। डाउन द रोड अगर आपको एक्सपेंड करना पड़ जाता है, सो यू डू नॉट हैव टू डू योर वायरिंग अगेन, आपकी वायरिंग विल रिमेन द सेम। Security is also you have to think about. So most of the time the answer lies somewhere between very and extremely. कितनी चाहिए आपको security? Copper cable is pretty secure, but it does emit a signal that can be intercepted, meaning people can tap into your transmission. Hence the term wiretap. Fiber optic cables are immune to wiretapping. Normally this isn't a big deal because copper cables don't exactly broadcast your data all over as a wireless connection. But if security is the utmost concern, then fiber is the way to go. Basically लोग क्या बोल रहे हैं, कॉपर वायर को आप वायर टैप कर सकते हैं, but that can usually happen physically, या आपका कोई one of the ports are connected, then you can, जैसे आप काफी मूवीज में भी देखा होगा, सिक्योरिटी जो केबल रन, सिक्योरिटी कैमरेज रन कर रहे होते हैं, अगर वो हार्ड वायर CCTV कैमरा है, उनको हैक करना हो अगर, तो अगर उसका वायर आपको दिख जाता है, तो आप खाली उसके वायर के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव वायर के ऊपर आप एक मेटल की क्लिप आती है
जो उसको इंटरसेप्ट कर देती है, अगर वो लगा दें तो जो वीडियो की फीड है वो आपको आना शुरू हो जाएगी. You don't have to do much. But फाइबर के अंदर तो लाइट इमेज चल रही होती है. So there is no way you can translate that light into binary or any machine language. But for home use and stuff, this is hardly ever needed. For government, I'm pretty sure वो लोग फाइबर ही यूज कर रहे होंगे. अगेन ये चार्ट दिया हुआ है कि कितना स्पीड है, कितनी कॉस्ट है. सो वी विल स्किप दैट. Wireless LAN. So when people are thinking about wireless network, the only real technology option available today is 802.11, Bluetooth and IR, infrared technology. Can help mobile devices communicate, but they aren't designed for full wireless. So your choices seems 802.11 standard must be used. Bluetooth और IR wireless के तौर पे ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकते. Bluetooth की रेंज कितने थोड़े मीटर होती है, IR की भी इतने ही नज़दीक के डिस्टेंस में ही होती है. तो you cannot use that. तो आपको ये डिसाइड करना है अभी कि वायरलेस 802.11 हम करें तो हम कौन से फ्रीक्वेंसी वाले यूज़ करें, A, B, G के N या AC. अभी बेटर यही है, जैसे जैसे आपको अपना कंपनी को फ्यूचर प्रूफ करना हो, मेक श्योर दैट यू आर सेलेक्टिंग समथिंग व्हिच इज एडवांस्ड. सो गोइंग विद AC would likely be the more best option. The reason being is that AC is backward compatible also. तो जो जो devices C के ऊपर नहीं चलेंगे वो आपके G, A and G के ऊपर भी चलना शुरू हो जाएंगे. Because वो जो राउटर आते हैं they are compatible with G, N and AC. ठीक है ना. So Bluetooth, as I said, is not designed to be a wireless LAN, but वो personal network, personal area network के तौर पे यूज कर सकते हैं. जितने भी लैपटॉप्स हैं उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई होता है एंड मोस्ट ऑफ द ब्लूटूथ भी उसके अंदर इनेबल होता है. अगर ब्लूटूथ इनेबल नहीं है तो आपको एक USB का ब्लूटूथ का एडेप्टर लगाओगे अगर अपने लैपटॉप में, तो वो USB के सिग्नल एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा. ब्लूटूथ के भी काफ़ी वर्जन्स निकले थे. ब्लूटूथ वर्जन 4.2 जो न्यूएस्ट है 2014 के अंदर रिलीज हुआ, उसकी स्पीड, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की 24 मेगाबिट्स पर सेकेंड थी कंपेयर टू 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड पुराने ज़माने में. ठीक है. और ये उसका चार्ट है. पहले थी 1.2, 2.0, 3 एंड देन 4. तो चाइना से जो अभी भी आप अगर ब्लूटूथ बाय करते हैं, मेक श्योर कि देयर प्रॉपर वर्जन. मैंने काफ़ी चाइनीज प्रोडक्ट्स देखे हैं जो स्टिल यूज 1.2 वर्जन विच इज़ इजीली हैकेबल ऑल्सो. ब्लूटूथ devices can also be hacked and they are actually one of the easiest to hack. So there are three classes of Bluetooth devices which differ in their transmission range and power usage. The specifications are shown in the channel below, the 8.7 chart below, right? Most Bluetooth devices are class 2 device which has a maximum range of 10 meter, 33 feet and power usage of 2.5 milliwatt. When studying Bluetooth, it's easy to get the versions and classes mixed up. Remember that they are independent of each other. Most devices you will see will be class 2 regardless of the Bluetooth version they support. Also remember that the version affects the data rate but not the maximum distance. Version has nothing to do with the distance. जो class है वो क्लास डिटरमिन करता है कि पावर कितना यूज करेगा और डिस्टेंस कितना यूज करेगा. अमूमन जो है क्लास 2 के बड़े कॉमन है, बट क्लास 1 भी अवेलेबल है, उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा है. आई मीन 10 टाइम्स मोर देन द क्लास 2. ठीक है ना. दूसरा अनयूजुअल फीचर ब्लूटूथ का क्या है कि देयर उनकी टेम्पररी नेचर. विद वाईफाई आपका सेंट्रल कम्युनिकेशन होता है राउटर से. इट्स अ नाइस ऑर्गेनाइज्ड वे. ब्लूटूथ इज नॉट लाइक दैट. इट्स वन
इट्स 1-to-1 डिवाइस और 1-to-2 डिवाइस एड हॉक बेसिस, और कोई सेंट्रल डिवाइस इसमें नहीं होता है। इसके अंदर 1-to-1 कनेक्शन होता है और बहुत ही लिमिटेड डिस्टेंस के ऊपर इसका कनेक्शन होता है, विच दे आल्सो कॉल इट पिकोनेट, हमने ऊपर पढ़ा था। इंफ्रारेड वेव्स जो है have been around since the beginning of time, like बहुत पहले की है, 1993 के अंदर आई थी ये। And infrared requires line of sight, and generally speaking the two devices need to be pointed at each other to work. If you point your remote away from a television, it will not work. Infrared बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, टीवी का रिमोट ही आप देख लें, टीवी के रिमोट को आप पॉइंट करेंगे तो ही चलेगा, कहीं और जगह करेंगे तो मोस्ट लाइकली नहीं चलेगा। वो गेट ओपनर जो होते हैं वो भी इंफ्रारेड पे चलते हैं। Some laptops have a built-in infrared port, which is a small dark square of plastic, usually black or dark maroon. For easy access, infrared ports are located in the front or sides of the devices that have them, and this is the one right here. ठीक है ना? अब के लैपटॉप में नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, ये इंफ्रारेड के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम है, बिकॉज यू कैन हैक दीज वेरी इजीली एज वेल। Even though infrared IRDA claims to have 5 GB and 10 GB transmission rates, these are all theoretical rates. Because infrared does not use radio waves, there are no concerns of interference or signal conflict. Atmospheric conditions can play a role in disrupting infrared waves, but considering that the maximum functional range of IRDA devices are about 1 meter, weather is not likely a cause of the problem. तो इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसकी रेंज कम होती है, बट यू नो वेदर एंड स्टफ इट्स प्रोन टू द वेदर, बिकॉज ये इंटरनली यूज होता है, बाहर तो वैसे भी यूज नहीं होगा। सिक्योरिटी नॉट इज एन इशू विद द IRDA. द मैक्सिमम रेंज इज अबाउट 1 meter, so with an angle about 30 degrees, and the signal does not go through walls, so hacking prospects are limited. If someone is making an attempt to intercept an infrared signal, it's going to be pretty obvious. The data is directional and you can choose. अच्छा, इसके अंदर इन्होंने एक चीज नहीं बताई, इंफ्रारेड के सिग्नल्स को बूस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसमें क्या होता है, गाड़ी के जो रिमोट होते हैं ना, उसके एक डिवाइस आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है, आप उसके अगेंस्ट रखेंगे ना तो उसके सिग्नल को बूस्ट कर देगा, विच मीन्स कि कहीं दूर से भी, कितना डिस्टेंस होता है, ज्यादा नहीं होता उसका भी डिस्टेंस, बट 1 मीटर से ज्यादा होता है। जैसे गाड़ी जो चोरियां होती है ना, आपको पता है गाड़ियां चोरी कैसे होती है? अमूमन जो दरवाजा होता है, जो मेन एंट्रेंस होता है लोगों का एंटर होने का, वहां के नजदीक अंदर उन्होंने कीचेन के ऊपर सारी चाबियां लटकाई हुई होती है। अमूमन लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चोर जो है वो आपके रात को सो रहे होते हैं, आपके घर के बाहर दरवाजे के पास आते हैं, और वो डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डिवाइस होता है, आपके घर के जो दरवाजे ना वहां पे रख देते हैं। उस इलेक्ट्रो डिवाइस का मकसद क्या है कि वो आपके रिमोट जो चाबी में नजदीक में पड़ी हुई है, उसका सिग्नल को खींच के उनके डिवाइस से इमिट करेगा। सो उनका डिवाइस मैन इन द मिडल बन जाता है। ये IR इंटरसेप्टर होता है। तो जब आपकी चाबी तो पड़ी हुई, आप सो रहे हो घर में, और उनको चाबी की जरूरत भी नहीं है, वो एक अपना डिवाइस लेके आएंगे, वो डिवाइस को ऑन करेंगे, उनका डिवाइस जो है आपकी चाबी, जितनी भी चाबी पड़ी होगी उन सबके इंफ्रारेड को कॉपी करके यहाँ पे वो आपकी गाड़ी के अंदर उसको इमिट करेगा और गाड़ी खुल जाएगी, स्टार्ट भी हो जाएगी। तो बहुत इजी है IR टेक्नोलॉजी को हैक करना। Keys to planning a network. First, you get a map and understand the layout of the space in which you are installing the network. Get a map of the office. ये लोग बेसिकली जो बात कर रहे हैं, I feel like हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इसके ऊपर काफ़ी आएगी। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि नेटवर्क डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले आपको बिल्डिंग देखने की, सबसे पहले ये देखने की कि किस चीज़ की बनी हुई है। बिल्डिंग अगर सिंगल ब्लॉक्स की या ब्रिक की बनी हुई है, तब तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर से वायरलेस सिग्नल नहीं जाएंगे, बहुत मुश्किल से जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा एक्सेस पॉइंट चाहिए होंगे, दैट्स वन। सेकेंड, आपको फिर ये डिसाइड करने का कि कौन से एरिया में आपको वायरलेस चाहिए, ठीक है।
फिर आपको ये डिसाइड करने का कि किस किस एरिया के अंदर में मुझे वायर रन करने के, कहाँ का मुझे सिक्योरिटी इक्विपमेंट लगाने के। तो ये सारी प्लानिंग पहले से होती है। जैसे हमारी एक लोकेशन थी, हमने वहाँ पे मेरे आदमी ने उन्होंने हर क्लासरूम में, बिकॉज सिंडर ब्लॉक की रेड ब्रिक की पूरी बिल्डिंग है, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और वो सिंडर ब्लॉक भी नहीं है, वो जो समंदरी पत्थर आते हैं ना, जो हॉलो नहीं होते, बीच के अंदर हॉलो नहीं होते, वो पूरा का पूरा पत्थर होता है मोटा, वो उसकी बिल्डिंग बनी है। जैसे चर्चेस भी वैसे ही बने होते हैं, तो उसके थ्रू आपके सिग्नल्स नहीं जाते हैं। तो हमने एक 7 के 8 क्लासरूम के अंदर वो एक बंदे ने एक्सेस पॉइंट लगा दिए, ये सोच के कि सब क्लास के अंदर एक्सेस पॉइंट है तो इंटरनेट चल जाएगा। अच्छा, सही ना। उससे इंटरनेट और खराब हो गया, क्योंकि 10 एक्सेस पॉइंट आपस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इंटरनेट खराब। तो फिर मैंने जाके इंटरनेट डिज़ाइन किया। वहाँ पे डिज़ाइन कैसे किया, आपको जाके देखने का कि एक्सेस पॉइंट मैं कौन सी लोकेशन में रखूँ जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम उसके सिग्नल्स जाएं और ज़्यादा रूम्स एंड ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें। तो वो सब आपको मैप आउट करना होता है, डिज़ाइन करना होता है बिफोर यू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। लोकेट योर सर्वर आप कहाँ लोकेट करेंगे, यूजुअली सिक्योर जगह में लोकेट करने का। आइडेंटिफाई करो कि क्लाइंट के कंप्यूटर्स कैसे होंगे और किस केबल पे वो लोग रन करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। नेटवर्क की रिसोर्स, मतलब कितने रिसोर्स चाहिए होगी आपको। डिटरमिन हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट, उनको वायर से कनेक्ट करोगे कि वायरलेस से कनेक्ट करोगे, ये आप सोच लो। बिजनेसेस के लिए मोस्टली वायर्ड कनेक्शन इज द वे टू गो। वायरलेस इफ इट्स एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, लाइक स्कैन गन्स, होम डिपो में आप जाते हैं तो स्कैन गन्स होती है ना उनके पास, तो वो वायरलेस से कनेक्ट, आपके पास भी है, अमेज़न में भी होती है, तो वो वायरलेस होती है, देयर इज नो वे। तो उसके लिए फिर वायरलेस प्रॉपर्ली डिजाइन करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि कहीं पे भी एक्सेस पॉइंट लगा दिए और फिर उम्मीद करें कि भाई वो चल जाएगा, नहीं, उसको डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है। डेजिग्नेट एडिशनल कनेक्टिविटी एरियाज इफ नीडेड, एडिशनल एरियाज में आपको कनेक्ट करना हो, फिजिकल इंस्टॉलेशन। ओके, इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जहाँ जहाँ आपने डिसाइड किया है कि अगर आपको वायर लगाने हैं तो मेक श्योर कि जहाँ जहाँ आप वायर रन कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर निक कार्ड्स भी हैं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में बोले कि इस ऑफिस के अंदर मैं वायर रन कर रहा हूँ, और आपको पता चल रहा है कि इस ऑफिस में तो सब लैपटॉप ही यूज करते हैं, तो वो तो वायर काम ही आएगा, तो वहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट ही लगाना पड़ेगा। या तो आपको फिर निक बाय करके उनके डेस्कटॉप या जो भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर निक लगाना पड़ेगा, या लैपटॉप होगा तो आपको ईथरनेट USB टू ईथरनेट अडेप्टर लगाना पड़ेगा, कुछ भी, ताकि वो वायर यूज हो सके। तो ये उनकी उसकी बात कर रहे हैं कि हाउ टू डिटरमिन व्हाट यू नीड टू डू। ये यूजुअली एक्सपीरियंस से आता है। कॉन्फ़िगरिंग अ निक जो है, अमूमन आप जैसे ही वायर कनेक्ट करते हैं तो DHCP प्रोटोकॉल जो है वो उसको IP दे देता है। अगर नहीं देता है तो आप मैन्युअली उसको एंटर कर सकते हैं IP, अगर आप चाहें तो। इजी कॉन्फ़िगरेशन, DHCP सर्वर के थ्रू भी उसको IP मिल सकती है। अगर सर्वर के थ्रू मिलती है तो उसको जो प्रॉपर IP है वो देगा। अगर राउटर के थ्रू मिलती है तो जो प्रॉपर राउटर की IP है वो देगा उसको, उसके अंदर गेटवे भी देगा। गेटवे इज बेसिकली वो दरवाज़ा है, राउटर बताता है कि तुम इस दरवाजे से बाहर जाओगे तो तुम इंटरनेट तक पहुंचोगे, वो गेटवे है। या अगर कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं होगा तुम अपने आप को प्राइवेट इंटरनेट की एड्रेस दे देगा, जिसको APIP है। ठीक है। अभी लोग बता रहे हैं कि भाई आपको निक कार्ड कॉन्फ़िगर करना हो तो विंडोज 7 में ऐसे करते हैं, तो हम आपको बता देते हैं इसके अंदर विंडोज 10 में। बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं इसको करने में, बट हम जाते हैं थ्रू, ये क्या हो गया, कंट्रोल पैनल में जाएंगे हम, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज एडेप्टर सेटिंग्स।
उस पर क्लिक करेंगे आप तो फिर ये विंडो खुल जाएगी। इसमें काफ़ी अलग अलग निक्स लगे हुए हैं, बट मेन जो है अभी ये लगा हुआ है जो कनेक्टेड। उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इनकी भी देखें सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ये लोग, और फिर कहाँ पे जाने का बोल रहे हैं ये सब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें मेन चीज़ आपको देखनी है वो है IPv4 विच इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कॉल IPv4, और IPv6 देखिए अनचेक है। तभी आपने जब मैंने IP कन्फिग किया था आपको IP6 नहीं दिख रहा था, बिकॉज मैंने IP6 चलाता ही नहीं हूँ। ठीक है, IP6 पे कोई सिक्योरिटी नहीं है तो अभी मेरे पास। तो IPv4 पे आप डबल क्लिक करेंगे या तो फिर आपको उस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये विंडो खुल जाएगी, और ये विंडो में लिखा हुआ है obtain an IP address automatically, obtain DNS server automatically। तो जो राउटर उसको देगा, जिस मैंने ईथरनेट वायर कनेक्ट किया है, तो वो राउटर से पूछेगा कि भाई मुझे कोई दे IP, तो जो भी राउटर इसको असाइन करेगा वो दे देगा, तो वो अब वो इधर नहीं शो होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे राउटर से नहीं चाहिए, मुझे खुद को असाइन करना है, सो आई कैन गो हियर देन आई कैन टाइप इन द IP। बट आपको पता होनी चाहिए कि आपके राउटर की डिफॉल्ट IP क्या है। अभी अगर समझे मेरे राउटर की डिफॉल्ट गेटवे जो है वो है 192.168.1.1, समझे मेरा डिफॉल्ट गेटवे ये है, और मैं IP यहाँ पे दे रहा हूँ 10.0.0.1, तो वो नहीं चलेगा, इट नीड्स टू बी इन द सेम सबनेट। तो अभी मैं इधर अस्यूम कर रहा हूँ कि मेरा है 10 क्लास A का सबनेट का नेटवर्क, और ये मेरी सबनेट मास्क है, तो मेरा गेटवे भी उसी के अंदर होना चाहिए। तो जो IP एड्रेस है इट कैन नॉट बी 1, आई कैन पुट इट लाइक 11, यू नो। चले, तो ये IP एड्रेस की सेटिंग हो गई। DNS की सेटिंग अगर आपको मैन्युअली करनी हो, DNS stands for domain name system, it resolves the domain name। तो इसके अंदर हम गूगल की ये कॉमकास्ट की डाल सकते हैं विच इज 4222, या तो 8.8.8.8, वो उससे कॉमकास्ट के DNS के सर्वर को यूज करेगा, या तो आप अपने राउटर की डिफॉल्ट गेटवे भी डाल सकते हैं। राउटर की डिफॉल्ट गेटवे डालने से क्या होता है कि आपका जो ये कंप्यूटर है वो राउटर से पूछेगा कि भाई मेरा DNS सर्वर कौन है, तो वो DNS की सेटिंग आपको राउटर पे करनी पड़ेगी। तो मोस्ट बिजनेसेस के अंदर ऐसे होता है, वो राउटर नहीं डालते हैं, वो डालते हैं DNS सर्वर। यहाँ पे DNS सर्वर जो है वो पॉइंट करता है, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर 6000 कंप्यूटर है और मैं नहीं चाहता वो 6000 कंप्यूटर गूगल के DNS पे जाए या कॉमकास्ट के DNS पे जाए, मैं चाहता हूँ वो DNS मेरा सिक्योर रहे, तो हम डालेंगे iBoss या सिस्को अम्ब्रेला, वो DNS सिक्योरिटी एक है, तो हम सिस्को की DNS डालेंगे। तो हमें अब वो 6000 कंप्यूटर में डालने की जरूरत नहीं है, हम हमारे DNS सर्वर के ऊपर एक बार सिस्को की IP डाल दी और बस हम यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक पे करेंगे, तो वो खुद ही आपका कंप्यूटर उसी DNS पे जाएगा जो आपके राउटर पे सेलेक्टेड है। ठीक है ना, तो अभी देखिए हमने ऑटोमेटिक रखी हुई है, तो अभी आप देखें अगर इसमें DNS देखिए क्या शो कर रहा है, ये है अपना DNS सर्वर, और ये DNS की IP शो कर रहा है, ये DNS की IP सिस्को की है। आपने देखा मैंने सेटिंग रखी थी ऑटोमेटिक, तो ये DNS क्यों आ गया, क्योंकि ये DNS इसने राउटर से उठाया है, क्योंकि राउटर का DNS ये सेट है, तो राउटर अब इसको बोल रहा है कि भाई तेरा DNS भी यही है, इधर जाके तुम चेक करना, DNS नेम रेजोल्यूशन जितना भी करना हो यहाँ से करना। तो अब क्या होता है कि सारी जो रिक्वेस्ट मेरे यहाँ से जाएगी वो सब सिक्योर होके सिक्योर सर्वर पे जाती है। ठीक है, सो दैट्स द पर्पस ऑफ दैट। यहाँ पे लेट्स सी वायरलेस कनेक्शन कैसे कनेक्ट करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। ये लोग जैसे बता रहे हैं आई कैन नॉट शो इट लाइक दैट बिकॉज मेरी स्क्रीन नहीं है, बट यू कैन गो टू कंट्रोल पैनल, जैसे हम कंट्रोल पैनल में गए थे, यू कैन गो बैक टू नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ठीक है, एंड देन यू कैन गो टू अगेन चेंज एडेप्टर सेटिंग्स। अब ये जो वाईफाई दिख रहा है
आप अगर उस पर डबल क्लिक करें तो वो लिस्ट शो करेगा। अब वो लिस्ट मेरी दूसरी स्क्रीन पे शो कर रहा है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये लिस्ट यहाँ पे शो करता है दूसरे सिस्टम के ऊपर। उसके अंदर से जो भी नेटवर्क आपको पसंद हो और जो भी नेटवर्क आपके घर का हो, जो जिसका भी पासवर्ड हो आपके पास, वो आप यूज कर सकते हैं। You just click on it, you enter the password, and then you're on. ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे लोग वही बोल रहे हैं कनेक्ट करने का। इट विल से कनेक्टिंग, आप पासवर्ड डालोगे तो आपको कनेक्ट होगा, पासवर्ड गलत होगा तो नहीं होगा कनेक्ट। जब भी आप नेटवर्क इंस्टॉल करो तो हमेशा ये याद रखने का कि कितनी डिस्टेंस आपको रन करनी है वो केबल, कि उस हिसाब से भी आपका नेटवर्क की जो स्पीड है स्लो और तेज हो सकती है। तो वो रन करने से पहले आपको जान लेने का कि कितनी लंबी आपको केबल रन करनी है और कहाँ रन करनी है। जैसे ये इन्होंने बताया है को कभी कभी ये है फ्लोर को प्रोटेक्ट करता है, फ्लोर केबल गार्ड सही। इसके नीचे से जाती है केबल ताकि कोई भी उसको चल के तोड़ ना दे, कट ना जाए या ऐसा। ठीक है, अभी लेट्स सी कॉन्फ़िगरिंग वायरलेस राउटर। वायरलेस राउटर कॉन्फ़िगर करने का ये लोग बता रहे हैं। लेट मी सी। Wi-Fi.org is the authoritative expert in the field of wireless LANs. It lists 5 critical steps to setting up secure wireless router. Change router ID, change the administrator user and password, encryption, security phrase, and the client. Select WPA. इसका मुझे आपको देना पड़ेगा हैंड्स ऑन रिव्यू। लेट मी सी। चलिए इन्होंने पिक्चर दी है तो उसके दूर जाते हैं, बिकॉज मेरे पास जो लगा हुआ है it's enterprise grade firewall, so if I show you that you're just gonna get more confused on that. तो मैं क्या करूँगा, जब हम प्रैक्टिकल की साइड पे आएंगे तो हम एक अलग से मैं राउटर इंस्टॉल करूँगा एंड देन we'll work on that. तो अभी बेसिकली 192.168.1.1 के ऊपर आप जाएंगे, आपका गेटवे है लोकल या जो भी गेटवे आपका, तो ये राउटर की सेटिंग्स आ जाएगी, राउटर का पेज आ जाएगा। देन आप उसमें पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे उसके अंदर। फिर आपको ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन देगा, गेस्ट एक्सेस, डिवाइस लिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी के अंदर आपको पासवर्ड भी उसका चेंज कर सकेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क का पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देने का आपको। ठीक है, फिर उसके बाद DHCP सर्वर, देखा यहाँ पे हम चेक कर देंगे तो इनेबल, DHCP सर्वर को इनेबल कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो राउटर है वो DHCP की IP देना शुरू कर देगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स 50, तो ये बोल रहा है कि भाई खाली 50 यूजर ही होने चाहिए मेरे नेटवर्क में, तो खाली ये 50 ही IP देगा एट द टाइम, ज्यादा नहीं देगा ये। ठीक है, these are like some of the security ways you can segment your network or narrow down your network. 5 GHz की फ्रीक्वेंसी के पासवर्ड आप चेंज कर देने के, और मेक श्योर कि सिक्योरिटी जो है वो WPA 2 एटलीस्ट 2, पर्सनल होम के लिए पर्सनल, एंटरप्राइज के लिए एंटरप्राइज यूज करना बेटर है इफ यू आर डूइंग 802.1x। ये मैं बाद में जरा बताऊंगा, बट बेसिकली इट इज मोर सिक्योर देन पर्सनल बिकॉज उसके अंदर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी होती है WPA 2 एंटरप्राइज में। ठीक है, चलें वायरलेस चैनल्स की हमने बात कर ली थी। काफी रिपीट। अच्छा, फिर ये लोग बता रहे हैं कि WPA 2 जब हम सेलेक्ट करें तो चैनल आपको कौन से सेलेक्ट करें। ये 5 GHz के चैनल शो कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे चैनल नंबर 36, 40, 44, 48, 49, 149 ये ऐसे यूज को बता रहे हैं। और ये देखें 5 GHz की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, खाली 5 GHz नहीं है, ये 5.118, 5.180, 5.20 अलग अलग है। तो ये 5 GHz की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आप चूज कर सकते हैं, या तो चैनल को ऑटो में भी डाल सकते हैं।
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जैसे मैंने बताया था, आपकी जो इंटरनल आईपी है उसको पब्लिक के अंदर वो ट्रांसलेट करता है। यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले, इट्स आल्सो नोन एज UPnP, आपके किसी भी राउटर के अंदर ये मोस्टली ऑप्शन होता है। जब भी ये ऑप्शन देखें मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप इसको डिसेबल कर दें। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि आप अपने कंप्यूटर से कोई भी डिवाइस या कोई भी नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करते हैं और उस नेटवर्क डिवाइस को कोई कस्टम पोर्ट के ऊपर या कोई भी अलग पोर्ट के ऊपर आउटसाइड वर्ल्ड से बात करनी है तो वो डिवाइस खुद ही पोर्ट खोल देगा, आपसे पूछेगा भी नहीं, वो खुद ही पोर्ट खोल देगा आपके फायरवॉल के अंदर और कम्युनिकेशन आपके उस डिवाइस से और बाहर की दुनिया से शुरू हो जाएगा। और दैट इज अ मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, बिकॉज आप ऐसा आप नहीं चाहते हैं कि आपके पूछे बगैर कोई भी पोर्ट ओपन हो जाए और उस पर कम्युनिकेशन हो जाए। हम एज अ हैकर यही चाहते हैं कि ये UPnP ऑन हो, ताकि हम कोई भी फाइल उनको भेजें, हम ऐसे बेसिकली भेजते हैं CNC कमांड एंड कंट्रोल की फाइल। इफ वी सेंड दैट वी कैन ओपन अप योर पोर्ट्स ऑटोमेटिकली without even the need of firewall. So UPnP I would highly recommend you disable that. ठीक है, हाँ। So I think we are coming to an end. देखिए ना 6:50. We are coming to an end. So let me just quickly go through this. Sharing an internet. Sharing an internet जो हमने Windows के थ्रू किया था हम वो शेयर कर सकते थे, बट आप इसके अंदर आके भी शेयर कर सकते हैं राउटर के अंदर आके। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि डू यू अलाउ लोकल कंप्यूटर्स टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यू कैन से यस और नो। अगर आप नो करते हैं तो इंटरनल नेटवर्क्स कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। एडिशनल वायरलेस राउटर सर्विसेज क्या है, फायरवॉल्स और QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में मैंने बताया था आपको। क्वालिटी ऑफ सर्विस वो होती है कि आप अपने ही नेटवर्क के अंदर कौन से इंटरनेट ट्रैफिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। अगर आप गेम खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मोस्ट जो मेरी बैंडविड्थ है सब गेमिंग के अंदर जाए, तो आप क्वालिटी ऑफ सर्विस आपकी चेंज कर सकते हैं और गेमिंग को सबसे टॉप पे रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, भले ना कोई फोन के ऊपर होगा या टीवी देख रहा होगा कुछ भी, उनको कम बैंडविड्थ मिलेगी, आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। तो ये आप उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फायरवॉल का पर्पस क्या है, इट प्रोटेक्ट्स योर नेटवर्क। आप ACL डाल सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि इंटरनेट है और ये आपका ऑन एज राउटर है, मीनिंग पेरिमीटर राउटर है, जो जहाँ से आपका मेन गेटवे है, आपका यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है वो कनेक्ट होता है फायरवॉल से। तो फायरवॉल जो है सारी चीजें फिल्टर करता है, फिर आपके इंटरनल राउटर के अंदर आता है। तो फायरवॉल से क्या होता है, ये सारे कनेक्शन आपके फिल्टर्ड होके आते हैं, सारे जो कनेक्शन इंटरनेट से आ रहे होते हैं वो कितने ब्लॉक हो जाते हैं और आपका नेटवर्क बच जाता है इससे। नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड फायरवॉल हमने ऊपर पढ़ा था। नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल आपके पूरे नेटवर्क को कवर करता है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल खाली सिर्फ आपके एक डिवाइस को कंट्रोल करता है। फायरवॉल ACL बेस के ऊपर काम करता है। ACL जो टॉप के ऊपर होती है वो उसको पहले रीड करता है, फिर उसके नीचे वाली ACL ऐसे ऐसे करके ऑल द वे नीचे तक जाता है अनटिल उसको अपने मतलब का ACL मिले। अगर अपने मतलब का ACL नहीं मिलता है तो उसको वो लास्ट वाले रूल को जाके हिट करता है, जो कि हमेशा डिनाई का रूल होता है। तो विच मीन्स ACL फायरवॉल वो वाला ट्रैफिक ड्रॉप कर देता है। फिर wireless firewall is the same concept, it comes through policies, या तो जो घर वाले हैं राउटर उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं to enable firewall protection, तो वायरलेसली उसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो encrypted हो जाता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस की मैंने अभी बात की आपको, ये वो क्या है। ठीक है, सो आई बिलीव हमने यहाँ पे वेब को भी कर लिया। तो हमने डिफरेंट वायरलेस सिग्नल्स के बारे में बात की, उस वायरलेस सिक्योरिटी की बात की, सोहो नेटवर्क की बात कर ली हमने, डिफरेंट इंटरनेट टाइप्स की भी बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, DHCP, DNS एंड नेट की भी बात कर ली। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 8 है ये अपना, हम एंड करेंगे। चैप्टर नंबर 9 इंशाल्लाह हमारी दूसरी क्लास के अंदर होगा। मैं उसकी डेट ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, and inshallah I will see you all on that. If you have any questions or concerns,
प्लीज़ चैट में डालें या कमेंट में डालें, और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड मेक श्योर यू हिट